Hello students, I hope all of you are well. So today we are going to start our second unit, which is Principles of Management, and in this video we are going to cover up the principles of management, its meaning and nature of principles of management. So let's start. So before going to start about the principles of management, you should know the meaning of principles. So see students, principles means what? Principles are the guidelines which tells us how to take any decisions. For example, students, as we are studying business studies, in our offline classes we have studied that a manager needs to take lots of decisions for day-to-day business performances, and while taking those decisions they need some guidelines, and the principles of management act as those guidelines. So if you go through the meaning of these principles of management in your book, that is a View Ocean book, you can find that the principles of management are the fundamental truth about some phenomenon. Okay, it explains the relationship between two or more set of variables under a given situation. It means what? For example, कोई भी एक situation ऐसा आ गया, suppose while doing any business in an organization, while doing any activity, डे टू डे एक्टिविटी, एक मैनेजर को, एक एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी सिचुएशंस फेस करना पड़ता है. तो ऐसे सिचुएशन में कैसे वो डिसीजंस लेंगे सो दैट इट कैन बी इफेक्टिव एंड ऑल्सो एफिशिएंट. सी, द प्रिंसिपल्स आर बेस्ड अपॉन साइंटिफिक स्टडी, इंक्वायरी एंड एनालिसिस. जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कुछ साइंटिफिक स्टडी के ऊपर बेस होते हैं, साइंटिफिक एनालिसिस के ऊपर भी बेस होते हैं. सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू नो अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयल, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का कुछ टेक्निक. ओके, तो सी, देखो प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट क्या होता है. इट डजंट एक्सप्लेन द सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम. ऑलवेज रिमेंबर, जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं दे डोंट गिव यू द एग्जैक्ट सोल्यूशन. You as a manager can take the help those principles, okay, to solve the problem. And in this video we are going to learn about the meaning and nature of principles of management. So देखो principles of management क्या होते हैं. They are general in nature and not specific. Okay, so it just helps you as guidelines, as we already discussed about the thing. Okay, so the meaning of principles of management क्या हो सकता है. These are the statements of fundamental truth which can be used by the managers as guidelines for decision making and taking action under different situations. Okay, so now I hope you have understood the principles of management का meaning क्या है. Now the derivation of principles of management means ये principles of management जो है ये कैसे derived हुआ, how it came to exist. For example student, देखो origin of principles of management generally derive हुआ है 2 points and you should know these two things. One is observation method, another one is experimental method. Now what is observation method? Observation and experience of practicing managers and scholars of management. That means what? देखो in this method क्या होता है, the managers may observe certain events and analyze them to gain experiences. For example, while doing work in an organization, suppose you are manager, तुम एक organization में जब work कर रहे हो, while means day to day activities perform कर रहे हो, there may be some situations you may face. Okay, तो तुमने एनालिसिस किया कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि द वर्ड एफिशिएंसी, एज यू नो एफिशिएंसी क्या होता है. इट इंक्रीजेस व्हेन द वर्क इज divided among the employees on the basis of their specialization. In our offline classes we have discussed about the term specialization, which means what? जो पर्सन जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसको वही काम करने को दो, तो उससे क्या होता है, वो पर्सन एक काम बार बार करते करते वो एक्सपर्ट बन जाता है. तो दिस इज़ व्हाट इज ऑब्जर्वेशन. ये कोई मैनेजर बैठ के ऑब्जर्व किया था, सो वी कैन से दे उससे क्या होता है, एक प्रिंसिपल्स भी डिराइव हो जाता है. ठीक है ना. सो द नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस में बी यूज फॉर गाइडेंस इन फ्यूचर. तो उससे एक मैनेजर्स को सपोज एक गाइडलाइंस मिल गया कि एफिशिएंसी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, तो इट can be a principles and it can use in future, okay, for future guidelines. Understood. Next point is एक्सपेरिमेंटल मेथड. नाउ एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है, देखो इन ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ था, मैनेजर हैज़ टू ऑब्जर्व द थिंग्स
how they are going, and on the basis of this they prepared some principles. But in experimental method they experiment something. Okay, so experiment something means they experiment means experience करके देखा कि सपोज ये वर्क होता है, जैसे कि एफिशिएंसी लीड्स प्रोडक्टिविटी जो हुआ है, तो मैनेजर्स ने सोचा कि क्यों ना हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें। दो ग्रुप में सपोज डिवाइड किया गया, एक में दिया गया कि एक पर्सन को बहुत सारा वर्क करने को मिला, और एक पर्सन को, एक ग्रुप में क्या हुआ, कुछ एम्प्लॉयज़ को सिर्फ पर्टिकुलर जो वो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड पे वही काम करने को मिला। तो उसके बाद क्या देखा गया कि दोनों ग्रुप का रिजल्ट क्या आया। ऑब्वियसली जो स्पेशलाइजेशन के बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया वहाँ का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा ही होगा। दैट मीन्स क्या, ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही बेसिस हुआ। ठीक है, सो एक प्रिंसिपल्स आता है लाइक यूनिटी ऑफ कमांड। तुम लोग इन आवर लेटर क्लासेस विल गेट टू नो अबाउट द प्रिंसिपल्स। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बोला जाता है कि द वन पर्सन शुड, द मीन्स वन पर्सन, नो एक्चुअली इट्स वन सबऑर्डिनेट शुड टेक द कमांड फ्रॉम ओनली वन बॉस। फॉर एग्जाम्पल इट मीन्स व्हाट, फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहा है तो वो अपने एक बॉस के अंदर ही वर्क करेगा ना। तो वहाँ पे सपोज वहाँ पे 2 3 4 बॉसेस आ गए, तो कोई एक बोल रहा है कि तुम ये कर दो, दूसरा बोल रहा है तुम वो कर दो, तो do you think will it be possible for their subordinate to work at that particular time to complete or to finish the task? It is not possible. Okay, so ये क्या हुआ, जो unity of command जो एक principles है वो कैसे derived हुआ, how did it derives? ये कोई managers that स्पेशली द हेनरी फेयल जो है उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था कि यूनिटी ऑफ कमांड हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे वो ओरिजिनल, उसका ओरिजिनल कहाँ से वो डेवलप हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पर्पस टू। तो ओरिजिनल और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, 2 मेथड से किया गया था। वन इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड, अनदर वन इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड। ओके, देन our next slide is about features of principles of management. In exam features may come or nature may come, so you may write, अगर 2 भी आ गया तो इसका आंसर एक ही होगा, you can write any one of them. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फीचर्स क्या है, मीन्स व्हाट आर दिस प्रिंसिपल्स, क्या होते हैं ये प्रिंसिपल्स। सी एज पर आवर स्लाइड्स, पॉइंट नंबर 1 इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सो नाउ ऑल ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मीनिंग क्या है, जो कि हर जगह पे होता है। दैट मीन्स व्हाट, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नो मैटर वेदर इट इज़ a small organization or big organization, whether it is a trading organization or manufacturing organization, these principles are applicable in everywhere. Like the features of management, student, I think you know this. So in the same way principles of management का features भी क्या है, these are universally applicable, हर जगह पे इसका uses होते हैं. Next point is general guidelines. So now what does it mean, general guidelines? The principles of management have been expressed in the form of general statement. General statement की तरह होता है, like कुछ lines होते हैं, okay? जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, दीज आर द प्रिंसिपल्स। वो कुछ जनरल स्टेटमेंट होते हैं। दिस प्रिंसिपल्स आर मोस्टली कंसर्न विद ह्यूमन बिहेवियर व्हिच कैन नॉट बी टेस्टेड अंडर कंट्रोल सिचुएशन, दैट इज लेबोरेटरी। दैट मीन्स व्हाट, देखो साइंस के प्रिंसिपल्स क्या होता है, लैब में उसको, लेबोरेटरी में हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस आर डील विद द ह्यूमन बिहेवियर, डीलिंग विद ह्यूमन बिहेवियर। ओके, so human behaviors are always unpredictable, so this is why management principles are not exact as principles of physical science and are merely expressed as statements. Okay, next point is evolutionary. Now evolutionary का meaning क्या है, जो principles of management है वो it doesn't come into existence only a single day. ओके, एक दिन में वो नहीं आया, उसको क्या हुआ था, इवोल्यूशन होता रहा। ठीक है, सो ये जो जनरली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे हेनरी फेयल ने, तो उन्होंने तो एक दिन में उसको डिराइव नहीं किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया, उसके बाद वो प्रिंसिपल्स आए, एंड अगेन उसके बाद बहुत सारा मॉडिफिकेशन भी होता रहा। दैट मीन्स इट इज़ इवोल्यूशनरी इन नेचर। इवोल्यूशन का मीनिंग क्या है, जो कि चलता ही रहता है, मीन्स बहुत सारे दिनों से अभी भी मीन्स इवॉल्व होता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबल। नाउ व्हाट इज फ्लेक्सिबल स्टूडेंट, देखो फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या होता है, आई थिंक द स्लाइड्स, ओके लेट मी चेक इट। ओके, तो फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या है, let's see, the principles of management are can be easily
changes according to the dynamic business organization. As you know, business organization is a dynamic one, means you cannot predict the business environment. Sorry, the business environment is a dynamic one. Okay, means जो भी environment में आज exist है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सेम ही रहेगा, वो changes होता ही रहेगा. The principles of management जो कि होता है वो flexible होता है. Okay, so that means what the application of management principles are subject to refinements depending upon the specific situation being faced by the manager. For example, अभी देखो, because of this pandemic, new changes of work policy has come in organization, like everyone is doing work from home. So ये क्या हुआ, तो according to the changing environment प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी चेंज हो गया. सो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल होता है, नॉट रिजिड. नाउ रिजिड का मीनिंग क्या है, जो कि स्टैटिक होता है, मीन्स जिसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, हार्ड होता है. बट ये जो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं एज पर आवर सिचुएशन. ओके, देन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ऑलवेज रिमेंबर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमेशा किसके ऊपर डिपेंड होता है, डिपेंड होता है कॉज और उसके इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर. ओके, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो इंडिकेट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर लीड्स टू स्पेशलाइजेशन. नाउ व्हाट डज इट मीन, डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स क्या है, अगर कोई वर्क को हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने से क्या होगा. फॉर एग्जांपल किसी को मार्केटिंग में बहुत अच्छा होता है स्किल है, किसी का अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा स्किल है, तो उनको अलग अलग से डिवाइड कर दिया गया और अलग डिपार्टमेंट में डाला दिया गया. तो इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, इज नॉट इट, एंड इट इंक्रीज इन एफिशिएंसी, वो एफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है. सो द डिवीजन ऑफ लेबर इज अ कॉज एंड एफिशिएंसी इट्स इफेक्ट. ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एग्जांपल ऑफ एप्पल. सो व्हाइल देखो, एक एप्पल अगर हम लोग ऊपर थ्रो करते हैं और या फिर कोई भी ट्री से एप्पल हमेशा नीचे ही गिरता है. वाई, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी, इट्स एप्लीकेबल ऑन अर्थ. तो ये जो कॉज है एप्पल गिरने का, इसका रीज़न क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, और इसका इफेक्ट क्या है, एप्पल नीचे ही गिरा. दैट मीन्स कुछ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो रहा है. इन द सेम वे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी हमेशा तुम किसी भी जगह पे अप्लाई करोगे, किसी भी जगह, स्पेशली इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वी मे सी दैट इनके बीच में एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमेशा होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज मेनली बिहेवियर. नो, मेनली बिहेवियर का मीनिंग क्या है, ऑलवेज रिमेंबर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइक साइंस. ओके, तो ये जनरली डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर. सो एंड यू नो ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल, हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. तो इट मीन्स व्हाट, हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो भी है इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं एज पर आवर सिचुएशन. So this is about the features of principles of management. I hope all of you have understood, and if you have any doubt you can write down in the comment section. In next class we are going to cover up the importance of principles of management. Okay, so that is for today. Thank you.